today we are going to learn about unit number 11. Unit number 11 is all about shared preference. So before this unit, what we have learned, let's discuss something about that. We have learned about Kotlin first, then the basic things about the Android, what is Android, benefits of Android, and the structure of Android, and all the key terms that we have learned till now. Then we have learned the widgets, right? Which type of widgets? Text view, edit text, button, image button, radio button, checkbox, radio group, date picker, and time picker. That is the view that we have learned till now. And we also learn three layout, name as constant layout, relative layout, and linear layout. ठीक है? तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं विथ एग्जांपल और विथ प्रैक्टिकल भी हमने देखा है, मैंने प्रैक्टिकल सेशन भी लिया है उसका, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है यूनिट नंबर 11 रिलेटेड टू द शेयर्ड प्रेफरेंस, we will discuss about what is the shared preference, what is the benefit of shared preference, how you can store the data into the preference. This is what we will discuss in this lecture. So first of all, let's discuss about the objectives for today's lecture. After studying this unit, you will able to understand the concept of a shared preference in the Android for storing and managing simple data. So if you want to store the data of the user, at that time the preference will be used. Learn how to create and configure preference in the Android application. In this unit, we will learn how to create a preference, how to store the data into the preference, how to configure the preference, and how to manage the data into the preference. Gain a proficiency in storing different type of data like as a string, integer, boolean, etc. into the preference. So we will learn about how to store multiple type of data into the preference file. Learn the process of retrieving data from shared preference in order to use it in a within the application. ठीक है, तो एक एप्लीकेशन आपने बनाई है, उसमें शेड प्रेफरेंस का डेटा हम रिट्राइव कैसे करेंगे वो भी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे. Explore best practice for managing preferences, including handling data consistency and updating preference. So this is the objective for today's lecture. Next. This is the topic that will be covered in today's lecture. Creating a preference means we will learn how to create a preference. Storing data into preference means how to store that data into the preference. Retrieving data from preference means how to retrieve the data which are stored into the preference file. Okay, so how you can retrieve that data and print on the particular screen. That also we will learn about in the today's lecture. चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिएटिंग प्रेफरेंस के बारे में. अगर आपको प्रेफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है, तो आप प्रेफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? इन एंड्रॉइड, shared preference are used to save and retrieve the primitive data types data. अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है कि उसका डेटा टाइप प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मीन्स व्हाट, इंटरनल डेटा है, से फॉर एग्जांपल इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, स्ट्रिंग, लॉन्ग, अगर ऐसा इनबिल्ट टाइप का कोई डेटा है आपके पास, तो उसको आप स्टोर करने के लिए प्रेफरेंस का यूज करेंगे. इन द की एंड वैल्यू पेयर, तो ये वाला जो डेटा स्टोर होगा वो डेटा की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होगा फ्रॉम अ फाइल विद इन द एप्लीकेशन फाइल स्ट्रक्चर. तो ये वाला जो है वो एक ही एप्लीकेशन में एप्लीकेबल होगा. मीन्स इफ यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन, देन योर प्रेफरेंस विल बी available only for that application from that particular file. Generally, the shared preference object will point to a file that contain a key value pair. तो shared preference का आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कोई फाइल को पॉइंट आउट करता रहेगा और वो फाइल में जो डेटा है वो की एंड वैल्यू पेयर में रहेगा. And provides a simple read and write method to save the and retrieve the data. और ये प्रेफरेंस क्या करता है, अगर आपको प्रेफरेंस फाइल में से कोई डेटा
रीड करना है या तो उसमें फाइल में डेटा राइट करवाना है, तो उसके लिए प्रेफरेंस जो है वो मेथड प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो मेथड से आप डेटा स्टोर कर सकते हो, और की एंड वैल्यू पेयर में जो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है वहां से उसको आप रिट्राइव करवा भी सकते हो, और रिट्राइव करवा के उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करा सकते हो। द शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल इज मैनेज्ड बाय एन एंड्रॉइड फ्रेमवर्क। तो ये वाली जो फाइल है, ठीक है, वो फाइल कौन मैनेज कर रहा है? एंड इट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर विद इन द एप्लीकेशन। तो ये वाली जो XML की फाइल बनेगी आपकी, ये वाली फाइल आपकी पूरी एप्लीकेशन में कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। एनीवेयर विद इन द एप्लीकेशन टू रीड और राइट डेटा इनटू द फाइल। अगर आपको इस फाइल में कोई रीड ऑपरेशन करवाना है या तो राइट ऑपरेशन करवाना है, तो आप पूरी एप्लीकेशन में से कहीं कहीं से भी, मतलब कोई भी स्क्रीन में से आप ये ऑपरेशंस करवा सकते हो। बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस द फाइल फ्रॉम एनी अदर एप्लीकेशन। ओके, सो ये वाली जो फाइल रहेगी, कौन सी फाइल? प्रेफरेंस फाइल। वो प्रेफरेंस फाइल कोई दूसरे एप्लीकेशन के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ वेरी सिक्योर्ड प्रेफरेंस, इज वेरी सिक्योर्ड बिकॉज यू कैन नॉट शेयर योर प्रेफरेंस फाइल विद द अनदर एप्लीकेशन। The shared preference are useful to store the small collection of key and value pair. So, yeah, the creating preference, it means if you have created a preference, at that time you can store the small amount of data into that file, like as a chunk of data. You can store the chunk of data into the particular preference file. Collection of key values such as user login information. अगर यूजर का लॉगिन इंफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो this data is a chunk of data, we can say. So you can store that data into the key and value pair in the shared preference. Application preference related to user. To maintain the state of applications next time when they log in again to the एप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा? शेयर्ड प्रेफरेंस जो है, अगर एक यूजर ने आपकी एप्लीकेशन पे एक बार लॉगिन करा है, तो अगर वो दूसरी बार लॉगिन करेगा तो वो फाइल में से ही वो चेक कर लेगा कि ये वाला जो यूजर है, ठीक है, वो ऑथोराइज्ड यूजर है या नहीं है। वो ये जो प्रेफरेंस फाइल बनाई होती है, वो प्रेफरेंस फाइल में से ही वो जो है वो चेक कर देता है। इन एंड्रॉइड वी कैन सेव द प्रेफरेंस डेटा आइदर इन सिंगल और मल्टीपल फाइल बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट। देखो, अब यहाँ पे ऐसा भी एक पॉइंट है कि अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, तो एक एप्लीकेशन में यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रेफरेंस फाइल to store a multiple kind of different data. In case if we use a single file to save the preference, then we need to use get preferences method to get the value from the set preference. अभी देखो, यहाँ दो मेथड्स है। एक मेथड का नाम है गेट प्रेफरेंसेस और दूसरी मेथड का नाम है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए ऐसा मान के चलिए कि आपको एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें एक ही प्रेफरेंस फाइल की जरूरत है, ठीक है, तो एट दैट टाइम यू विल नीड टू कॉल द मेथड नेम एज गेट प्रेफरेंसेस ओनली। See, in case if we use a single file to save preference, then we need to use the get preference method. ठीक है, अगर आपके पास एक ही सिंगल फाइल है प्रेफरेंस की, तो आप कौन सी मेथड का यूज करोगे? गेट प्रेफरेंस मेथड का यूज करोगे। From the preference file or for multiple file, we need to call the method name as get shared preferences. तो अगर आपके पास एक एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रेफरेंस फाइल बन रही है, या फिर आपको बनाने की जरूरत है और आपने बनाई है, तो उस टाइम आपको क्या कॉल करना पड़ेगा? वो मेथड का नाम क्या है? वो मेथड का नाम है गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड पास द फाइल नेम एज पर द पैरामीटर। तो ये अगर गेट शेयर्ड प्रेफरेंस मेथड का यूज करो, तो आपको उसमें क्या रहेगा कि फाइल नेम एज अ पैरामीटर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये जो गेट शेयर्ड प्रेफरेंस मेथड है, ठीक है,
ये मेथड मल्टीपल प्रेफरेंस के लिए है, और अगर आप मल्टीपल प्रेफरेंस यूज कर रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरे को कौन सी फाइल एक्सेस करनी है। पर अगर आपके पास एक ही XML फाइल है, एक ही प्रेफरेंस फाइल है, तो आपको कौन सी मेथड का यूज करना पड़ेगा, गेट प्रेफरेंसेस, और उसमें कोई फाइल नेम एज अ पैरामीटर आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक ही फाइल है और एक ही फाइल को आप एक्सेस करोगे डायरेक्टली। पर अगर आपके पास मल्टीपल फाइल है तो आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे को अभी ये वाली प्रेफरेंस फाइल का यूज करना है, तो वो आपको फाइल का नाम यहाँ पे एज अ पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास कोई एक ही XML फाइल है, अभी देखो आप अगर कोई प्रेफरेंस क्रिएट करोगे तो प्रेफरेंस फाइल जो है वो XML फाइल क्रिएट करेगा। सो देयर विल बी अ XML फाइल टू स्टोर द डेटा इनटू द preference. It is called a preference, or you can call a XML file also, right? तो यहाँ पे प्रेफरेंस की जो XML फाइल बनेगी वो अगर एक होगी, आपकी पूरी एप्लीकेशन में एक ही बनेगी, तो आपको गेट प्रेफरेंसेस मेथड का कॉल करना है, और उसमें कोई पैरामीटर फाइल नेम का नहीं रहेगा, ठीक है? और अगर आपके पास एक एप्लीकेशन में मल्टीपल प्रेफरेंस फाइल है तो आपको गेट शेयर्ड प्रेफरेंस मेथड का यूज करना है, और ये वाला जो मेथड है उसमें एज अ पैरामीटर एक फाइल का नाम जो है वो आपको देना पड़ेगा कि आपको कौन सी प्रेफरेंस फाइल यूज करनी है। देखो ये वाला जो पॉइंट था वो ही पॉइंट यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में दिया गया है। अगर यहाँ पे दो मेथड है, देखो, गेट प्रेफरेंसेस मेथड है और गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस मेथड है। दिस मेथड इज, कौन सी मेथड? गेट प्रेफरेंस. So this method is for activity level preference, and each activity will have its own preference file. And by default, this method retrieves the default preference file that belongs to that activity. Right? तो अगर आपके पास पूरी एप्लीकेशन में एक ही प्रेफरेंस फाइल है तो आप कौन सी मेथड का यूज करोगे? गेट प्रेफरेंसेस मेथड का यूज करोगे। ये वाला पॉइंट यहाँ पे टेबल में दिया गया। और अगर आपके पास मल्टीपल XML प्रेफरेंस फाइल है तो मेथड कॉल करना पड़ेगा गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस. This method is used to get the value from multiple shared preference file by passing the name as a parameter. तो आपको फाइल का नाम एज अ पैरामीटर वहां पे देना पड़ेगा. वी कैन कॉल दिस फ्रॉम एनी कंटेक्स्ट इन दैट एप्लीकेशन. तो एक एप्लीकेशन है उसमें से आप कहीं से भी, मतलब कोई भी स्क्रीन में से, कोई भी एक्टिविटी में से ये वाली मेथड जो है आप कॉल करा सकते हो. चलिए, क्रिएटिंग प्रेफरेंस. तो अगर आपको प्रेफरेंस क्रिएट करना हो वो कैसे करेंगे? If we are using a single shared preference file for our activity, then we need to initialize preference object by using get preference method as given below. अब देखो यहाँ पे उसका सिंटेक्स दिया गया है. सिंटेक्स क्या है? var means we are creating a variable name as sp. sp is a variable, or you can say object of preference, equal to application dot get preferences. देखो यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल करी है? गेट प्रेफरेंसेस मेथड कॉल करिए. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही प्रेफरेंस फाइल होगी, इसलिए. इफ यू हैव अ सिंगल सेट प्रेफरेंस फाइल देन यू नीड टू कॉल गेट प्रेफरेंसेस मेथड, एंड इन दैट method there will be just one parameter. The name of the parameter is mode. context dot mode underscore private. यहाँ पे दो तरह के मोड आते हैं, प्राइवेट मोड और अपेंड मोड, ठीक है? अभी यहाँ पे जो सिंटेक्स में बताया है वो प्राइवेट मोड के लिए बताया है. तो यहाँ पे गेट प्रेफरेंसेस मेथड का यूज करा है और उसमें एक ही पैरामीटर है, मोड दिया गया. यहाँ पे कोई फाइल नेम नहीं दिया गया. अभी इन केस इफ वी आर यूजिंग मल्टीपल शेड प्रेफरेंस फाइल देन वी नीड टू इनिशियलाइज द प्रेफरेंस ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग गेट शेड प्रेफरेंस मेथड लाइक एज शोन बिलो. तो ये वाला आपको समझ में आ गया कैसे इसका सिंटेक्स क्या है क्रिएट करने के लिए? वेरिएबल sp इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट गेट प्रेफरेंसेस, और वो प्रेफरेंसेस के अंदर आपको एक पैरामीटर देना है. वो पैरामीटर क्या रहेगा? वो फाइल का मोड रहेगा कि आप ये जो प्रेफरेंस फाइल है वो किस मोड में ओपन करना चाहते हो. देखो, मोड आप कोई भी फाइल हैंडलिंग, जब भी फाइल हैंडलिंग करोगे वो मोड तो आपको देना ही पड़ेगा. अभी आप सी में फाइल हैंडलिंग करो या फिर जावा में फाइल हैंडलिंग करो, if you are working with the file at that time you need to provide the mode.
तो ये वाला जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, सिंटेक्स दिया गया है, वो है मल्टीपल प्रेफरेंस फाइल के लिए। यू कैन सी वेरिएबल sp इक्वल टू, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है sp नाम का, एप्लीकेशन डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। देखो यहाँ पे कौन सी मेथड का कॉलिंग करा है, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस मेथड का यूज करा है। अभी देखो उसमें दो पैरामीटर दिए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ऐसा लिखे, तो ये वाला स्टूडेंट वो है जो वो क्या रहेगा, वो हमारा प्रेफरेंस फाइल का नाम रहेगा। ठीक है, देखो अभी देखो ये वाला अगर फाइल वो प्रेफरेंस में है नहीं तो वो बना देगा। ठीक है, अगर ऐसी फाइल उसको नहीं मिलेगी स्टूडेंट नाम की तो वो अपने आप से कोई फाइल इंटरनली बना ही देगा। और सेकंड पैरामीटर क्या है, उसका मोड देना है। तो फिर कंटेक्स्ट डॉट मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। तो देखो दो एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गेट प्रेफरेंसेस है उसमें एक ही पैरामीटर है, यहाँ पे गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस में है उसमें दो पैरामीटर है। फाइल का नाम है सबसे पहला और दूसरा पैरामीटर है उसका मोड। ठीक है, here the name file name 1 means a student is the preference file which we want to read the value based on our requirement। तो वो फाइल में से आपको जो भी वैल्यू रीड करवानी हो वो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप करवा सकते हो। And the context mode underscore private will make sure that the file can be accessed only within our application, right? If you are not providing the mode over here, this will give you the error. So if you want to create a preference file, you need to provide the mode over here। ओके, सो मोड प्राइवेट किसके लिए है कि ये आपकी एप्लीकेशन को सिक्योर करता है। किस लिए, किस तरह से, क्योंकि यू कैन नॉट शेयर दिस प्रेफरेंस विथ अनदर एप्लीकेशन, और किसी और एप्लीकेशन का प्रेफरेंस आप अपनी एप्लीकेशन में भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मोड प्राइवेट जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये वाला हमने क्या जब करा था, क्रिएटिंग प्रेफरेंस। तो आपको कोई प्रेफरेंस अगर क्रिएट करना हो तो दो मेथड है, गेट प्रेफरेंस और गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। तो अभी मानो कि हमारा कोई एक प्रेफरेंस जो है वो स्टूडेंट नाम का प्रेफरेंस फाइल बन गया है, और स्टूडेंट नाम का प्रेफरेंस फाइल बनेगा, उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, एक्सएमएल फाइल रहेगा। तो ये फाइल का नाम एक्चुअल में कैसा होगा, स्टूडेंट डॉट एक्सएमएल फाइल। वो फिर वो एक्सएमएल फाइल में हम लोग डेटा स्टोर करेंगे। तो आई वो अभी तक आपको सब समझ में आ गया है, हाउ टू क्रिएट द प्रेफरेंस फाइल विथ अ मेथड गेट प्रेफरेंस एंड गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। चलिए, अभी यहाँ पे जो बात करा है वो है स्टोरिंग डेटा। अभी आपने क्या सीख लिया, सबसे पहले कि भाई प्रेफरेंस को क्रिएट कैसे करता है। Once the preference is created, after that you can store the data into the preference। To store a data in preference file, we need an editor। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिटर होगा। तो आपको अगर आपका डेटा स्टोर करवाना है, so there will be a editor to edit and save the changes into the preference file। अभी ये वाला आप बात जो है आप माइंड में फिक्स कर लो कि अगर आपको ये प्रेफरेंस फाइल में कुछ भी एडिट करना हो, एडिट मतलब डेटा रीड करना हो, सॉरी डेटा राइट करना हो और डेटा एडिट करना हो, उसके लिए एडिटर लगेगा। पर आपको सिर्फ उसमें से डेटा रीड करना है तो उसमें कोई एडिटर का यूज नहीं होगा। When file is altered, at that time the editor will be used. If you want to alter that file, alter the data of the file, at that time the editor will be used. Keep this point in your mind, right? So if you want to store the data, it means you need to alter the file. You need to alter the data into the file. Storing is also an altering and editing is also an altering. To store a data or to edit the data, we need an editor to edit and save the changes. Right? Following is the code snippet to store the data in a shared preference file using editor। तो अभी यहाँ पे जो ये वाला कोड दिया गया है, ये कोड जो है वो
एक्सएमएल फाइल में डेटा राइट करने का मतलब डेटा स्टोर करने का कोड है, वो मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है शेयर्ड प्रेफरेंस करके, इक्वल टू गेट प्रेफरेंसेस। अभी देखो यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल की गई है, गेट प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी एप्लीकेशन में एक ही प्रेफरेंस बनेगा और उसका मोड क्या है, प्राइवेट है। ये मोड अंडरस्कोर प्राइवेट जो दिया गया है वो पूरा कैपिटल में लिखा है, वो आपको ऐसे ही लिखना है। ये वाला कांस्टेंट वेरिएबल है कंटेक्स्ट क्लास का। तो ये वाला एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, शेयर्ड प्रेफरेंस। चलिए आगे, नेक्स्ट लाइन जो है उसमें क्या ऑब्जेक्ट बनाया है, एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, एडिटर इक्वल टू शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट एडिट। देखो यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल करी है, एडिट मेथड कॉल करी है। क्यों, क्योंकि यू नीड टू अल्टर दैट फाइल, यू नीड टू चेंज द डेटा इनटू द फाइल, इसीलिए आपको एडिटर की जरूरत पड़ेगी। तो यू इफ यू वांट टू चेंज, इफ यू वांट टू एडिट द डेटा, व्हाट इज द मेथड, the edit method is used to alter the data into the preference file। अभी देखो आपके पास एडिटर नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो अभी आपके पास है। ठीक है, चलिए उसके बाद एडिटर डॉट पुट बुलियन। अभी देखो यहाँ पे आपको अगर कोई बुलियन डेटा स्टोर करवाना है, मींस ट्रू और फॉल्स टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मेथड क्या लगेगी, पुट बुलियन मेथड लगेगी। और पैरामीटर में दो पैरामीटर है, एक जो है आपका की नेम होगा और एक आपका वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये वाला कोई की आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने सिंटेक्टिकली समझाया है, फिर एग्जाम्पल भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तो की का नाम देना पड़ेगा आपको और यहाँ पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने अभी ट्रू डाल दिया है। एनी डॉट पुट स्ट्रिंग, तो अभी ये वाला कौन सा मेथड है, पुट स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग डेटा है, वो स्ट्रिंग डेटा आप प्रेफरेंस में स्टोर करवाना चाहते हो, at that time you will need to call the method name as put string। और पुट स्ट्रिंग मेथड का भी दो पैरामीटर रहेगा, की नेम एंड अ स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पे आपको कोई की देनी पड़ेगी, की का नाम देना पड़ेगा और आपकी स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद पुट आईएनटी, पुट आईएनटी मेथड। This method is used to store the integer data into the preference file। ये मेथड के भी दो पैरामीटर है। सबसे पहला पैरामीटर है की नेम, आपको कोई एक की देनी है। दूसरा पैरामीटर है इंटीजर वैल्यू। और देखो आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट भी दे सकते हो और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके पास स्ट्रिंग में अगर कोई इंटीजर वैल्यू हो तो उसको टू इंटीजर से आप कन्वर्ट करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको इन डेप्थ समझाने की ट्राई करी है। ठीक है, कि अगर पास आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू हो और स्ट्रिंग में अगर न्यूमेरिक वैल्यू हो तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करा सकते हो, ऐसे इंटीजर वैल्यू डॉट टू आईएनटी। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली प्रोवाइड द इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू ओवर हियर। देखो यहाँ पे लिखा है अज्यूमिंग इंटीजर वैल्यू इज द वैलिड इंटीजर स्ट्रिंग। तो ये अभी ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये वाला वैलिड इंटीजर स्ट्रिंग है। ठीक है, और अगर आपके पास डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड पैरामीटर इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हो, उसके लिए कोई टू इंटीजर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे, नेक्स्ट मेथड है पुट फ्लोट। अगर आपके पास कोई फ्लोट डेटा है, मीन्स फ्रैक्शनल डेटा है, और फ्रैक्शनल डेटा को आप प्रेफरेंस फाइल में स्टोर करना चाहते हो, एट दैट टाइम द मेथड विल यूज टू स्टोर द float data is put float। There is also a two parameter, a key name and float value। But if you have your float value into the string, right, at that time you can call to float method to convert that string into the float। we are assuming that the float value is a valid float string। तो इन्वर्टेड कोमा में आपके पास अगर स्ट्रिंग में फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, तो आप ऐसा करवा सकते हो। और अगर आपके पास डायरेक्टली फ्लोट वैल्यू ही है तो फिर आपको कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डू नॉट नीड टू कास्ट दैट डेटा, राइट। ये जो है वो अगर आपके पास स्ट्रिंग में कोई फ्लोट डेटा है तो
आपको उसको क्या करना पड़ेगा, टू फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो मेथड है वो है पुट लॉन्ग। अगर आपके पास कोई लॉन्ग डेटा है, वो लॉन्ग डेटा आप प्रेफरेंस फाइल में स्टोर कराना चाहते हो, तो मेथड कौन सी लगेगी यहाँ पे, पुट लॉन्ग मेथड लगेगी। ठीक है, और उसमें भी दो पैरामीटर लगेंगे, की नेम, आपको कोई की देनी पड़ेगी, और लॉन्ग वैल्यू डॉट टू लॉन्ग। वी आर अज्यूमिंग दैट द लॉन्ग वैल्यू इज अ वैलिड लॉन्ग स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग में कोई लॉन्ग वैल्यू है तो उसको आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा टू लॉन्ग में। तो यहाँ पे डॉट टू लॉन्ग, राइट। और अगर आपके पास डायरेक्टली लॉन्ग वैल्यू है तो यू कैन डायरेक्टली पुट एज अ सेकंड पैरामीटर। बट ये सभी में देखो आप, की नेम जो है वो की नेम किस में देना है, स्ट्रिंग में ही देना है। चाहे आप पुट बुलियन करो, पुट स्ट्रिंग करो, पुट इंटीजर करो, पुट फ्लोट करो, या फिर पुट लॉन्ग करो, फर्स्ट पैरामीटर इज द की, एंड द की पैरामीटर विल ऑलवेज बी इनटू द स्ट्रिंग, राइट। ये सब तो कर लिया, जो डेटा स्टोर करवाना था आपने सब पुट कर दिया है, पर फाइनली आपको करना पड़ेगा एडिटर डॉट अप्लाई। ठीक है, ये अप्लाई मेथड को कॉल करोगे तो ही आपका डेटा है वो प्रेफरेंस फाइल में स्टोर होगा। यूज अप्लाई इंस्टेड ऑफ कमिट टू असिंक्रोनस सेविंग। अभी यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, यू कैन कमिट दैट फाइल ऑल्सो और यू कैन अप्लाई दैट फाइल ऑल्सो। बट इफ यू आर यूजिंग द अप्लाई मेथड, इट मीन्स दैट इंस्टेड you apply instead of commit for asynchronous saving। ठीक है, एक ही फाइल में अगर मल्टीपल यूजर डेटा सेव कर रहे हैं तो अप्लाई मेथड को कॉल करनी है, क्योंकि असिंक्रोनस मेथड तो वही करेगा। ठीक है, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा। तो इफ मल्टीपल यूजर आर यूजिंग द सेम प्रेफरेंस, एट दैट टाइम यू नीड टू कॉल द अप्लाई मेथड इंस्टेड ऑफ कमिट मेथड। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमिट भी यूज कर सकते हो अभी के लिए, पर अगर एक ही फाइल को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे हैं और डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी नीड टू कॉल द अप्लाई मेथड ओवर हियर। चलिए, अभी ये वाला जो कोड है वो यहाँ पे थियोरी पॉइंट्स में यहाँ पे समझाया गया है। इफ यू ऑब्जर्व अबव कोड स्निपेट, वी क्रिएटेड अ प्रेफरेंस एडिटर बाय कॉलिंग द एडिट मेथड ऑफ सेड प्रेफरेंस। अभी देखो यहाँ पे एडिट मेथड भी हमने डाला है। सबसे पहले क्या करा, प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, उसके बाद हमने एडिट में से एडिटर बनाया है। We added a primitive data type values such as integer, float, long, string and boolean. This all data type is a primitive data type। ठीक है, इनबिल्ट डेटा टाइप। तो अगर आपके पास कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप का डेटा है तो आप उसको प्रेफरेंस में स्टोर कर सकते हो by passing the key and value to the method name as put integer, put string, put boolean, put long, etc. based on the requirement. You can say based on your data also. After that, to save the changes we are calling a commit method। तो मैंने आपको जैसे बताया, commit method भी करा सकते हो आप, और apply method से भी आप asynchronous saving करा सकते हो। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले हमने क्या करा, प्रेफरेंस को क्रिएट करा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रेफरेंस में डेटा स्टोर करा। अभी एक बार अगर कोई डेटा प्रेफरेंस में स्टोर हो गया तो यू कैन रिट्राइव दैट डेटा ऑल्सो, राइट। To read or retrieve a value from the preference file, we need to call a method such as getInt, getString, etc. Get boolean, get long, get float. These are the methods you can retrieve the data from the preference by providing the key of the particular value। हाँ, इसमें एक बात ये भी है कि अगर आप गेट इंटीजर, गेट स्ट्रिंग कोई भी मेथड का यूज करके रिट्राइव कर रहे हो डेटा, तो आपको की प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा किस तरह से स्टोर हुआ है, की एंड वैल्यू पेयर में से स्टोर हुआ है। तो अगर आप कोई की पास करोगे तो वो की का पर्टिकुलर डेटा ही आपको मिलेगा। ठीक है, अगर प्रेफरेंस फाइल में कोई नेम नाम की है, तो आपको अगर वो नेम नाम की जो है उसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको नेम नाम की जो की है उसका यूज करके आपको डेटा मिल सकता है बाय प्रोवाइडिंग द की फॉर द वैल्यू। तो आपको जो भी वैल्यू चाहिए आपको उसका की देना पड़ेगा। अगर आप की दोगे एक बार तो उसका वैल्यू ये आपको रिटर्न करेगा।
गेट इंटीजर, गेट स्ट्रिंग, गेट बुलियन, गेट लॉन्ग, गेट फ्लोट। देखो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, सिंटेक्स दी है, वो है प्रेफरेंस में से डेटा रिट्राइव करने के लिए किस तरह से आप प्रेफरेंस फाइल में से डेटा रिट्राइव करवा सकते हो। सबसे पहले एक प्रेफरेंस बनाया है, वेल प्रेफरेंस इक्वल टू गेट प्रेफरेंसेस। क्यों गेट प्रेफरेंसेस? क्योंकि हमने एक ही प्रेफरेंस बनाया है और उसका मोड दिया है प्राइवेट। अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज गेट कराने की ट्राई करी है हमने। वैल्यू वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। अभी देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया ना हमने प्रेफरेंस, ये ऑब्जेक्ट का यूज करके हम मेथड कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग। देखो गेट गेट स्ट्रिंग, गेट इंटीजर, गेट फ्लोट, गेट बुलियन, गेट लॉन्ग, ये सभी मेथड में दो पैरामीटर लगेंगे। अब आप ऐसा पूछोगे कि सर दो पैरामीटर क्यों? हमको तो यहाँ पे कोई फाइल में डेटा स्टोर नहीं करवाना है, वी जस्ट वांट टू रिट्राइव दैट डेटा, सो वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड द की नेम, राइट? आप सही हो, अगर आपको कोई डेटा रीड करवाना है तो आपको खाली उसका की नेम देना पड़ेगा। पर यहाँ पे एंड्रॉइड का जो कंसेप्ट है कोटलिन में, वो ऐसा है कि if you want to retrieve that data, you need to pass two parameter with the particular method. तो फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा? फर्स्ट पैरामीटर तो की नेम ही रहेगा, पर सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा? सेकंड पैरामीटर इज द डिफॉल्ट वैल्यू इफ द की इज नॉट there stored into the particular preference. If this key will not found into the particular preference file, then the second parameter will be the default value. So you can say like, if you want to get the data from the file, if you want to retrieve the data from the preference file, there will be a two parameter name as a key name and a default value. अब देखो यहाँ पे बात करूं, अगर एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर वैल्यू करके इक्वल टू प्रेफरेंस डॉट गेट INT, तो यहाँ पे आपको की देना है, ठीक है? अगर वो की प्रेफरेंस फाइल में नहीं मिल रही है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? डिफॉल्ट वैल्यू इसका 0 होगा। ऐसे ही हमको फ्लोट वैल्यू भी है, फ्लोट वैल्यू के लिए गेट फ्लोट है, प्रेफरेंस डॉट गेट फ्लोट की वैल्यू एंड 0f, ये f क्या इंडिकेट करता है? फ्लोट वैल्यू इंडिकेट करता है कोटलिन में। बुलियन वैल्यू इक्वल टू प्रेफरेंस डॉट गेट बुलियन, अगर आपको कोई बुलियन डेटा प्रेफरेंस में से चाहिए तो गेट बुलियन, आपको उसका की पास करना पड़ेगा और डिफॉल्ट वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स कुछ भी रख सकते हो। अभी आपको कोई लॉन्ग डेटा गेट करवाना है तो गेट लॉन्ग मेथड है, उसका की पास करना पड़ेगा और सेकंड पैरामीटर 0l, l मींस अ लॉन्ग वैल्यू का आइडेंटिफाई करेगा आपको। If you observe above code, we are getting the value from the preference using the method such as getInt, getFloat by providing the key for the value which we want to get. चलिए अभी हम इसका एग्जांपल देखते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस का। तो अभी मैं ऐसा अज्यूम करो, आप भी ऐसा अज्यूम करो कि एक एप्लीकेशन बनाई है हमने और उस एप्लीकेशन में एक एक्टिविटी है। अगर एक एक्टिविटी होगी तो दो फाइल बनेगी, एक XML फाइल बनेगी, एक KT फाइल बनेगी। XML फाइल डिजाइन पर्पस के लिए होगी और KT फाइल कोडिंग पर्पस के लिए होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा अज्यूम करो कि ये वाली फाइल जो है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML फाइल है। उसमें एक सबसे पेरेंट एलिमेंट क्या लिया गया है? रिलेटिव लेआउट, ठीक है? तो ये वाला लेआउट कैसे चलता है वो हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस करा है। तो रिलेटिव लेआउट दिया गया है यहाँ पे, रिलेटिव लेआउट का विथ मैच पेरेंट है और हाइट भी यहाँ पे मैच पेरेंट ही दी गई है, ठीक है? तो पूरी स्क्रीन में सबसे पहले क्या है? एक रिलेटिव लेआउट यहाँ पे दिया गया है। अब वो रिलेटिव लेआउट के अंदर मींस दिस इज अ पेरेंट एंड दिस एडिट टेक्स्ट इज अ चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट। और हमने क्या लिया है यहाँ पे? एडिट टेक्स्ट लिया है, आईडी दिया है एडिट टेक्स्ट टू, विथ wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट। मींस विथ उसकी कितनी रहेगी? जितना कंटेंट होगा उतनी विथ रहेगी, और हाइट कितनी रहेगी? जितना कंटेंट होगा उतनी हाइट रहेगी। और इनपुट टाइप क्या दिया है? टेक्स्ट पर्सन नेम दिया है। देखो यहाँ पे जो इनपुट टाइप दिया गया है वो क्या है? टेक्स्ट पर्सन नेम है,
ठीक है, तो एक ये एडिट टेक्स्ट है। एक दूसरा एडिट टेक्स्ट यहाँ पे है, और वो ही रिलेटिव लेआउट के अंदर विथ आईडी एडिट टेक्स्ट, विथ उसका wrap कंटेंट है, हाइट उसका wrap कंटेंट है, और इनपुट टाइप क्या है यहाँ पे, नंबर दिया गया है। और एक यहाँ पे बटन है, तो बटन का आईडी क्या है, बटन 2, विथ wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट, और यहाँ पे ऑन क्लिक यूज करा है। सेट ऑन क्लिक लिसनर करके हमको इवेंट नहीं करानी है, यहाँ पे ऑन क्लिक प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इवेंट फायर करोगे। ठीक है, तो ये ऑन क्लिक इक्वल टू क्या लिखा है, रीड प्रेफरेंसेस। तो ये रीड प्रेफरेंसेस एक मेथड बनेगी केटी फाइल में। वो मेथड यहां से कॉल होगी जब यूजर ये बटन के ऊपर क्लिक करेगा, तब रीड प्रेफरेंस मेथड जो है वो कॉल होगी, और वो फाइल होगी, वो फंक्शन होगा कहाँ पे, वो मेथड केटी फाइल में होगी, कोडिंग फाइल में। ठीक है, और एक टेक्स्ट दिया गया है रीड प्रेफरेंस करके। तो एक एडिट टेक्स्ट है, एक दूसरा एडिट टेक्स्ट है, उसके बाद बटन है, बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये बटन किसके लिए है, प्रेफरेंस में से डेटा रीड करवाने के लिए। अब देखो वो बटन के नीचे दो टेक्स्ट व्यू लिए हैं, टेक्स्ट व्यू एंड टेक्स्ट व्यू 2, दोनों के हाइट विथ wrap कंटेंट है। ठीक है, यहाँ पे विथ कितना है, wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट, और यहाँ पे भी विथ कितना है, wrap कंटेंट। और टेक्स्ट अभी कुछ नहीं दिया है, ब्लैंक है, और टेक्स्ट साइज है 30 dp का दोनों का। और एक नीचे बटन लिया है, वो बटन कौन सा है, राइट प्रेफरेंस करके। तो अभी आप ऐसा एज्यूम करो कि एक एडिट टेक्स्ट है नेम के लिए, एक एडिट टेक्स्ट है नंबर के लिए, फिर एक बटन है रीड करवाने के लिए, फिर दो टेक्स्ट व्यू है, वो रीड करके हम टेक्स्ट व्यू में डेटा डिस्प्ले करेंगे। और जब भी कोई यूजर ये वाला बटन के ऊपर क्लिक करेगा, राइट प्रेफरेंस के ऊपर, तो एडिट टेक्स्ट में जो डेटा है वो डेटा हम स्टोर करेंगे प्रेफरेंस में, ऐसा आप अज्यूम कर लो। ये वाला बटन है, उसका आईडी क्या है, बटन विथ wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट, ऑन क्लिक, यहाँ पे कौन सी मेथड कॉल करी है, राइट प्रेफरेंस नाम की मेथड यहाँ पे कॉल करी है। वो मेथड केटी फाइल में लिखी होगी, जब भी यूजर ये वाले बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो राइट प्रेफरेंस मेथड कॉल होगी, और उसमें लिखे गए जो कोड है वो एग्जीक्यूट होंगे, और टेक्स्ट दिया गया है राइट प्रेफरेंस। तो आई होप यू आर अज्यूमिंग द लेआउट ऑफ दिस एग्जांपल। ठीक है, एक एडिट टेक्स्ट है नाम के लिए, एक एडिट टेक्स्ट है नंबर के लिए, उसके नीचे एक बटन है रीड प्रेफरेंस करके, वो बटन के नीचे दो टेक्स्ट व्यू है, नाम के लिए एक टेक्स्ट व्यू, नंबर के लिए दूसरा टेक्स्ट व्यू। तो अब जब भी यूजर रीड के ऊपर क्लिक करेगा तो प्रेफरेंस में से डेटा आएगा और वहां पे डिस्प्ले होगा वो टेक्स्ट व्यू में। ठीक है, और ये वाले बटन के ऊपर अगर कोई यूजर क्लिक करता है राइट करने के लिए, तो एडिट टेक्स्ट में जो डेटा एंटर करा है वो डेटा प्रेफरेंस में राइट हो जाएगा। अभी के लिए ये वाला एक्सएमएल फाइल हमने लिया है। चलिए आगे चलते हैं, मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल। अभी ये वाली जो फाइल है वो कोडिंग फाइल है। ठीक है, तो ये फाइल में सबसे ऊपर एक पैकेज स्टेटमेंट रहता है, और उसके नीचे काफी सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट होते हैं, और जैसे भी आप क्लास के यूज करे जाते हो अपने कोड में, वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करा जाता है एंड्रॉइड स्टूडियो। ठीक है, अभी क्लास एक बनाया है मेन एक्टिविटी, ये वाला साइन जो है वो कॉलन है, वो इनहेरिटेंस के लिए है, मीन्स इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो ये मेन एक्टिविटी है वो कहाँ से इनहेरिट कर रही है डेटा, एप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में से। इन मेन एक्टिविटी में मेथड, प्रॉपर्टीज और लिसनर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है रोल नंबर कॉलन एडिट टेक्स्ट। मतलब ये वाला जो रोल नंबर है वो किस टाइप का बना है, एडिट टेक्स्ट का बना है। ठीक है, हाँ ये वाला जो वेरिएबल है वो लेट इनिट है, क्योंकि क्यों ऐसा है लेट इनिट, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने ये बताया कि लेट इनिट क्यों लगते हैं यहाँ पे। लेट इनिट यहाँ पे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है रोल नंबर, उसको मैं अभी इनिशियलाइज नहीं करना चाहता हूँ, वो मैं बाद में इनिशियलाइज करूंगा। अगर आप लेट इनिट यहाँ पे नहीं लिखोगे तो यहाँ पे वो एरर देगा। ठीक है,
तो कोटलिन का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर आप कोई वेरिएबल बनाओ तो उसको आप वैल्यू असाइन करो, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे अज्यूम वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते हो, इनिशियलाइज नहीं करना चाहते हो, तो ये लेट इनिट कीवर्ड जो है वो उसके आगे लिख दो। तो प्राइवेट लेट इनिट वेरिएबल रोल नंबर कॉलन एडिट टेक्स्ट। तो अभी ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हमने एक और वेरिएबल बनाया है नंबर नेम करके, लेट इनिट वेरिएबल नेम कॉलन एडिट टेक्स्ट। उसके बाद आप देखो तो हमने डिजाइन व्यू में दो टेक्स्ट व्यू लिए थे, तो लेट इनिट वेरिएबल tv1 कॉलन टेक्स्ट व्यू, लेट इनिट वेरिएबल tv2 कॉलन टेक्स्ट व्यू। और एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने शेड प्रेफरेंस का, लेट इनिट वेरिएबल sp कॉलन शेड प्रेफरेंस। तो ये वाला sp वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो वेरिएबल बना है, ठीक है, वो किस टाइप का बना है? प्रेफरेंस टाइप का बना है। उसके बाद ओवरराइड फंक्शन ऑन क्रिएट, सुपर डॉट ऑन क्रिएट, सेट कंटेंट व्यू, उसमें आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। इसका मतलब क्या रहता है कि ये वाली जो केटी फाइल है, ये केटी फाइल की एक्सएमएल फाइल कौन सी है, तो यहां से वो आइडेंटिफाई करेगा ये वाली लास्ट लाइन से, सेट कंटेंट व्यू से। चलिए, तो ये वाला सेट लिखा है, उसके नीचे ही मैंने चारों वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है। रोल नंबर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट। अभी ये वाला क्यों हम लोग लिखते हैं वो मैंने पिछले सभी लेक्चर में आपको समझाया है, ठीक है। और नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट एडिट टेक्स्ट टू। tv1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू। tv2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू टू। तो ये चारों विजेट का हमने फाइंड व्यू बाय आईडी करवा दिया है। उसके बाद दो बटन बचे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले राइट प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। मैंने आपको वहां पे बताया था कि अगर कोई यूजर राइट प्रेफरेंस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाली मेथड कॉल होगी राइट प्रेफरेंस नाम की, और उसमें जो भी कोड लिखा गया है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अगर कोई कोई यूजर राइट प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करता है तो सबसे पहले जो है वो हम लोग क्या बनाते हैं, एक प्रेफरेंस बनाते हैं। किस मेथड का यूज करके? गेट शेड प्रेफरेंसेस। अभी ये वाली मेथड है, उसमें दो पैरामीटर लगेंगे, फाइल नेम और मोड। तो यहाँ पे फाइल नेम क्या दिया है? फर्स्ट प्रेफरेंस। और मोड क्या दिया है? प्राइवेट। और आपको यहाँ पे एडिटर की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यू नीड टू अल्टर दी फाइल, यू वांट टू अल्टर द डेटा ऑफ द पर्टिकुलर फाइल। तो यहाँ पे हमको एडिटर भी लगेगा। तो एक वेरिएबल बनाया है एडिटर इक्वल टू sp डॉट एडिट। अब ये एडिटर का यूज करके हम मेथड कॉल करेंगे। सबसे पहले पुट int रोल नंबर, ये पहला पैरामीटर है जो ये की है। दूसरा पैरामीटर रोल नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू इंटीजर। तो रोल नंबर में कोई यूजर ने एडिट टेक्स्ट में रोल नंबर डाला होगा तो वो स्ट्रिंग होगा, तो उसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। इसलिए यहाँ पे डाला है ऐसा, रोल नंबर का जो टेक्स्ट है मींस रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, वो टेक्स्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट करो। तो ये वाली की है, और यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी जो यूजर एंटर करेगा वो एडिट टेक्स्ट में। तो एडिट टेक्स्ट में यूजर ने जो भी रोल नंबर डाला है वो हम लोग प्रेफरेंस में पुट करने वाले हैं। एडिटर पुट स्ट्रिंग, वो नेम के लिए है क्योंकि नेम तो स्ट्रिंग में रहेगा, रोल नंबर इंटीजर में होता है, न्यूमेरिक वैल्यू है, पर नेम तो क्या रहेगा? स्ट्रिंग में रहेगा। तो फर्स्ट पैरामीटर इज अ की, मींस नेम इज अ की, एंड नेम डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इज अ वैल्यू that which are entering by the user into the particular edit text। और उसके बाद एडिटर डॉट अप्लाई, अप्लाई किसके लिए है? फॉर असिंक्रोनस सेविंग के लिए। अभी देखो, जैसे ही यहां तक कोड एग्जीक्यूट होगा तो ये डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल में क्या करा है कि ये जो रोल नंबर और नेम वाला जो एडिट टेक्स्ट है उसको मैंने क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो उसका डेटा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। कैसे? रोल नंबर डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर, मीन्स रोल नंबर का जो टेक्स्ट है उसको क्लियर करो। ऐसे ही नेम का जो टेक्स्ट है उसको क्लियर करने के लिए नेम डॉट टेक्स्ट डॉट क्लियर, ठीक है। तो अगर कोई यूजर राइट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे, और ये कोड में जो भी डेटा एंटर करा है एडिट टेक्स्ट में वो प्रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट,
अभी हम बात करते हैं रीड प्रेफरेंस की। तो अगर कोई भी यूजर रीड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाली मेथड कॉल होगी। कौन सी मेथड? रीड प्रेफरेंस मेथड। उसमें हमने क्या लिखा है? सबसे पहले sp इक्वल टू गेट शेड प्रेफरेंस, फाइल का नाम और मोड। फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट प्रेफरेंस, मोड प्राइवेट। अभी देखो आपको क्या करना है कि प्रेफरेंस में से डेटा गेट करना है, राइट? तो आप जो भी डेटा गेट करोगे उसको आपको एक वेरिएबल में भी लेना पड़ेगा अगर आपको जरूरत है तो। अगर आपको वेरिएबल में नहीं लेना है तो यू कैन डायरेक्टली सेट द टेक्स्ट फ्रॉम दी गेटिंग द टेक्स्ट। यहाँ पे दोनों मैंने दिए गए हैं, देखो एग्जाम्पल में दोनों दिया है। सबसे पहले व्हाट इज द मेथड नेम इज गेट int. It will retrieve the integer data from the preference file. You just need to provide the key name over here. So you can see whenever we are storing the data, the key is roll number, and when we are retrieving the data, the key is roll number. So you need to provide the key value, means a key to retrieve that data. और अगर वो डेटा रिट्राइव नहीं होता है तो 0 एज अ डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो ये वाला जो भी रिटर्न करेगा कुछ तो डेटा आपके पास आएगा। वो डेटा आपने क्या करा है? रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें स्टोर कर दिया इक्वल टू से, वो वैल्यू असाइन कर दी है। क्यों असाइन करी? क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है वो आप फ्यूचर में यूज करना चाहते हो, इसीलिए आपको ये वेरिएबल में लेना पड़ेगा। अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली यू कैन गेट एंड सेट देयर, राइट? तो अभी मैंने क्या करा है, ये जो डेटा गेट करा है इंटीजर डेटा, उसको रोल नंबर में ले लिया है। और उसके बाद रोल नंबर जो गेट टेक्स्ट, यहाँ पे गेट इंटीजर करा, ठीक है? तो इंटीजर करके जो डेटा आया है उसको मैं अभी सेट करूंगा। किस में सेट करूंगा? वो टेक्स्ट व्यू में। तो ये रोल नंबर जो है वो हमारा टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट रोल नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। क्योंकि टेक्स्ट व्यू में अगर आपको कोई डेटा डिस्प्ले कराना है तो उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए रोल नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद दिया गया है नेम डॉट सेट टेक्स्ट। तो नेम वाला क्या रहेगा? हमारा टेक्स्ट व्यू है, उसमें हमने सेट टेक्स्ट करा। क्या सेट टेक्स्ट करा? sp डॉट गेट स्ट्रिंग। अभी देखो मैंने दूसरा वाला जो मेथड बताया था वो यहाँ पे है। आप यहाँ से गेट कर रहे हो और गेट करवा के सीधा आप उसको टेक्स्ट व्यू में सेट करवा रहे हो, ठीक है? तो गेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, अगर आपको वो नेम नाम की की नहीं मिल रही है तो नल वैल्यू डिफॉल्ट होगी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या देखा? राइट प्रेफरेंस भी देखा है और रीड प्रेफरेंस भी देखा है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। चलिए समरी की बात करते हैं। इन एंड्रॉइड डेवलपमेंट प्रेफरेंस प्रोवाइड अ सिंपल वे टू स्टोर एंड रिट्राइव की एंड वैल्यू पेयर ऑफ data such as a preference or application settings. To begin using preference, developer can create an instance via get shared preference or get preference. Can also store using the method like put string, put integer, put boolean, put long, put double. ठीक है? This data is saved synchronously with apply method or synchronously with commit method. To retrieve the data, method such as a get string, get int or get boolean method is used along with the default value to handle the case if the data is not available into the file. This approach offers a lightweight efficiency solution to managing a simple persistent data in Android application without the need of complex database system. कीवर्ड्स कौन से देखे आज के लेक्चर में? सबसे पहले देखा हमने सेड प्रेफरेंस, अ लाइट वेट स्टोरेज मैकेनिज्म in Android to saving the retrieving key and value pair of data. Context, environment of or state of the application. Get shared preferences, a method to create or access a preference instance with a specific name. Get preferences is a method that will create and access a default preference associated with the current activity. Then there is a method named as a put string. This method will use to store the string value into the preference. Put int, method used to store the integer value into the preference. Boolean method, put boolean to store the boolean value into the preference. And apply method used to save the changes asynchronously to the preference file. और ये वाले भी मेथड हमने देखे, commit method used to save the synchronous process into the preference file. Get a string, if you want to get the string data from the preference, the get string method will be used. Get int,
If you want to retrieve the integer data from this preference file, get int method will be used. If you want to get the boolean data from the preference file, get boolean will be used. की वैल्यू पेयर अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर. तो ये की वैल्यू पेयर क्या है? ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है where key is associated with the value. Default value, a fallback value provided when the request key does not exist in the preference. Persistent storage, data that remain available even after the application is closed. There is some multiple choice question is there. Let's have the MCQ. First, what is the primary use of preference in the Android? To store large data set, to store key and value pair, to manage database, and to storing the image. So right answer is B. By preference, you can store the key and value pair of simple data. Which of the following method is used to store string value? Put integer, put a string, put boolean, save a string. So right answer is B, put string method. Which method should you use to save changes to the preference file asynchronously? अगर आपको preference file में कोई data store करवाना है पर asynchronously करवाना है तो कौन सी method use होगी? As we know, the apply method will be used there. Which of the following method is used to retrieve a stored integer value? तो preference में अगर integer value store है और वो integer value आपको अगर retrieve करवानी है तो कौन सी method होगी? As we all know, get integer method. What is the purpose of providing a default value when retrieving the data from shared preference? To prevent app crashes when the key does not exist, to speed up the retrieval process, to store the backup value, to make the data more secure. So right answer is A. If you want to get the preference which are not available into the preference file, so the default value will prevent the application crash when the key does not exist. Which class is used to interact with preference in Android? Shared preference, shared preference manager, shared preferences, shared preference utils. So right answer is C, shared preference class. Which of the following method is used to save data into the preference? Save data, edit, put, commit. तो अगर आपको कोई डेटा स्टोर करना है, सेव करवाना हो तो commit method है. What is the correct way to retrieve a string value from preference? So shared preference dot get string key and default value, shared preference dot get key, shared preference dot retrieve string key, shared preference dot get string value key. So right answer is A. How can you check if the key exists in the preference? अगर आपको चेक करना है कि ऐसी कोई की अवेलेबल है या नहीं है तो उसके लिए जो मेथड है वो मेथड का नाम है कंटेन्स और आपको एज अ पैरामीटर आपको की प्रेस करनी होगी मतलब की आपको वहां पे प्रोवाइड करनी होगी. अगर वो की वहां पे होगी प्रेफरेंस में तो वो ट्रू रिटर्न करेगा. अगर आपने जो की कंटेन्स करा है अगर वो नहीं मिल रही है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. Which of the following is the correct mode to open preference in the private mode? Mode private, mode world readable, mode world writable, mode public. So right answer is A. Mode private is the mode, right? You can store your preference. There is two self-assessment question from my side. What is the shared preference and how it is used to store and retrieve simple data such as user preference or application setting. How can you retrieve data from preference in Android? And what is the role of the default value when the key does not exist? तो ये वाला थोड़ा रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे डाला है तो इसको भी अगर आप रिफर कर सको तो अच्छा रहेगा. यू कैन रिफर दिस ऑल्सो. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा है. हाउ टू क्रिएट द प्रेफरेंस, हाउ टू स्टोर द डेटा इनटू द प्रेफरेंस एंड हाउ टू रिट्राइव द डेटा व्हिच आर स्टोर्ड इनटू द प्रेफरेंस विथ एग्जांपल. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू गाइस.